13 معاملے پر باڑہ سیاسی اتحاد کے زیر اہتمام قومی جرگہ شرکا کے امن کے حق میں بھرپور اور کھلی آواز، متاثرین کے فنڈز میں صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر سخت تنقید، 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت ناقابل قبول قرار، قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین حاجی شیری افریدی نے پیش کیا، قبائلی مشرین کا 13 متاثرین سے یکجہتی اور حمایت کا اعلان۔ متاثرین 13 کے مسائل علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں بلکہ یہ اجتماعی قومی مسئلہ ہے، معاملے کے حل میں مزید تاخیر ناقابل برداشت ہے، متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے، متاثرین سے کیے گئے تمام وعدوں اور معاہدوں کو تحریری اور عملی طور پر تسلیم کر کے نافذ کیا جائے، وادی 13 میں فوری امن بحال اور مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے، خوف و ہراس پھیلانے والے حملے بند کرائے جائیں، 13 معاملے پر جرگے سے قبائلی مشران کا خطاب۔ جرگہ مشران کا متاثرین 13 کے واجب الادا بقایا جات فوری ادا کرنے کا مطالبہ، ادائیگی نہ ہونے پر گاڑیوں کو جلوس کی صورت پشاور لے جانے اور بھرپور احتجاج کا اعلان، 13 متاثرین کی رجسٹریشن اور سیاسی مداخلت، اقربا پروری اور کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ، 13 میں گھر یا جائیداد رکھنے والے تمام افراد کو بے گھر افراد کا درجہ دینے پر زور، قیام امن کے لیے باڑہ میں امن تحریک کے باقاعدہ آغاز کا اعلان، سیاسی اتحاد باڑہ متاثرین 13 کے شانہ بشانہ رہنے کے عزم کا اعادہ۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیاں، بلوچستان میں 12 مقامات پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حملے ناکام، 52 خارجی دہشت گرد جہنم واصل، سیکورٹی فورسز کا مفرور دہشت گردوں کا تعاقب جاری، مزید خارجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات، مادر وطن کا بڑی بہادری سے دفاع کرتے ہوئے سیکورٹی اداروں اور پولیس کے 15 جوان شہید، صوبے میں 2 روز کے دوران اب تک فتنہ الہندوستان کے 133 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے، ISPR۔ گوادر میں بلوچ مزدور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی بربریت کا شکار، خضدار سے تعلق رکھنے والے 18 معصوم بلوچ شہید، خواتین اور بچے بھی شامل، یہ افراد محنت مزدوری کے لیے گوادر آئے تھے، گھناؤنے واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، دہشت گردی کے گھناؤنے واقعات کے خلاف گوادر کے غیور عوام میں شدید غم و غصہ، غریب مزدوروں پر حملہ واضح کرتا ہے کہ فتنہ الہندوستان بھارتی ایما پر بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف سرگرم ہے، سیکیورٹی ذرائع۔ فتنہ الہندوستان کی دہشت گرد کارروائیوں کا نشانہ معصوم بلوچ عوام، فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے لیبر کالونی گوادر کے نہتے شہریوں کو اپنی سفاکیت کا نشانہ بنایا، GDA ہسپتال گوادر میں زیر علاج زخمی بلوچ شہریوں کے مطابق دہشت گردوں نے نہتے اور بے گناہ بلوچ عوام کو نشانہ بنایا۔ ہمارا بیوی تھا وہ باہر تھا، ایسے دروازے پہ گولی مارا نا، وہ گولی اندر آیا، ہم ادھر سوچی کہ یہ دستے بھی لگ گیا اور پیسے بھی لگ گیا۔ ہمارا بیوی نے قرآن شریف اٹھایا، کہہ رہے تھے بھائی ہم مسلمان ہیں، بخال نہیں ہے تم ایسے مار رہے مار کو غریب مکتوس کنا مسجد پہ دست کو غریب موڑے اکساتے نے نکم ملٹی کنا دے تک بھائی ایسا کرے رہی تھی بے چکار کرے۔ والد صاحب کا سر پہ لگا اور یہ میرا کزن ہے، ان کو 5-6 جگہوں میں بھی لگا۔ ہمارے مادر وطن کا بہادری سے دفاع کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے شہداء اور غازیوں کو سلام، بلوچستان کے مختلف مقامات پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حملے ناکام بنا دیے گئے، بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، خواتین اور معصوم بچوں پر حملے بزدلانہ عمل ہے، ایسے دہشت گردانہ فعل ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر داخلہ کی شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت، محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات، لواحقین سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان اب دیدہ ہو گئے، شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائگاں نہیں جائیں گی، بلوچستان کے عوام اور سیکورٹی فورسز بہادر اور باہمت ہے، ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی رہے گی، میر سرفراز بگٹی۔
अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करती हूँ। अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में मजबूत शराकतदार है। हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की लहर पर आलमी बरादरी की जानिब से भी सख्त मजम्मत। बरतानिया, सऊदी अरब, कतर और तुर्की का मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इज़हार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। जंगी फ़ज़ा के बरखिलाफ अमरीका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। मामलात को गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिशें जारी हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की गुफ्तगू। इजराइल की जानिब से अमन मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर और गजा की पट्टी में खान यूनिस पर हमलों में 6 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के नफाज के बाद अब तक 500 से ज़ायद, जबकि अक्टूबर 2023 से गजा पर इजराइल की नस्लकुशी की जंग में कम अज़ कम 71,769 अफराद शहीद हो चुके। इजराइल का आज से रफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने का ऐलान। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अलालत के बाद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे उनके आबाई इलाके चेचियाँ मीरपुर में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर आज़ाद कश्मीर की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग, तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। मरहूम आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और मुख्तलिफ वजारतों पर भी फाइज रहे। याम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर के तलबा और तालिबात का जोश और जज्बे से भरपूर इज़हार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मसम्मत। शुहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। आलमी बरादरी से कश्मीरियों के हक़ खुदरादित की हिमायत में मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक जदोजहद जारी रखने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल इन्वेस्टर रोड शो का इन्नेकाद। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद। पहली बार शिमाली अमरीका, यूरोप, मशरक़ वस्ती और दीगर खित्तों से 225 सरमायाकार शरीक। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत पाकिस्तान की मजबूत और मुस्तहकम मईशत पर आलमी एतमाद का अक्कास है। SIFC ने वन विंडो प्लेटफॉर्म के तहत सरमायाकारों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात मुहैया कर दी हैं। मशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले का आखिरी और अहम मैच। पाकिस्तान और भारत की टीमें बुलवाए में मद्दे मुकाबिल। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सरजमीन पर T20 सीरीज जीती। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में कई रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम हुए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा टोटल बनाया। पाकिस्तान ने पहली मरतबा 90 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को मात दी। पहली मरतबा पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तमाम 10 विकेटें हासिल की। काज़ाकिस्तान के एलिना रेबिकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस सिंगल जीत लिया। फाइनल में रेबिकिना ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की सेरेना सेबलेंका को शिकस्त दी। विंबलडन के बाद एलिना रेबिकिना के करियर का यह दूसरा बड़ा एजाज है। रेबिकिना क्वार्टर फाइनल के बाद के राउंड में टॉप 10 खिलाड़ियों को शिकस्त देकर मेलबर्न टाइटल हासिल करने वाली 2019 के बाद पहली खिलाड़ी आलमी दर्जनबंदी में भी तीसरे नंबर पर आ गई।
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स टाइटल का फैसला आज होगा। फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज मध्य मुकाबल। जोकोविच ऑल टाइम रिकॉर्ड 25 ग्रैंड स्लैम के लिए पुरआज़म। फाइनल जीतने की सूरत में टेनिस की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम होगा। कार्लोस अल्काराज की फतह न सिर्फ उन्हें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल दिलाएगी, बल्कि करियर ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करने वाले नौजवान तरीन मर्द खिलाड़ी भी बन जाएंगे। फ्रांस में 2030 सरमाई ओलंपिक्स की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज। सरमाई ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के रंग फ्रांसीसी एल्प्स कोर्शेवल में नस्ब। कोर्शेवल फ्रांसीसी एल्प्स के दिलफरेब पहाड़ी इलाकों के मकामात में से एक है। कोर्शेवल में 2030 ओलंपिक खेलों के मुतादिद मुकाबले मुनक्किद होंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, बाड़ा सियासी इत्तेहाद के शुरका ने तीरा से आरजी नकल मकानी करने वाले खानदानों से मुकम्मल यकजहती करते हुए हमदर्दी और हिमायत का ऐलान किया है। तीरा के मामले पर जरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जरगा मशरान ने तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड भी सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तीरा मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। कौमी जरगे के एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने कहा कि हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जरगा किया। उन्होंने कहा कि बाद में जरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मशरान को सौंपी, मगर दोनों जरगे नाकाम रहे। जरगा मशरान ने कहा कि मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, ये इज्तमाई कौमी मसला है। उन्होंने कहा कि इज्तमाई कौमी मसले के हल में मजीद ताखीर नाकाबिल बर्दाश्त है। आर्जी इनखला के मराहिल और बातचीत के दौरान सूबे खुसूसन जिला खैबर की सियासी क़यादत मौजूद थी। सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद ही आबादी के आर्जी इनखला का फैसला किया गया। जरगा मशरान ने कहा कि वादिया तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए, मुस्तकबिल में पायदार अमन की वाज़ेह ज़मानत दी जाए। उन्होंने कहा कि खवारिज के तीरा में फायरिंग, शेलिंग, मार्टर हमले और क्वाडकॉप्टर गिराने जैसे इकदाम को फौरी बंद किया जाए। खवारिज का यह अमल आम शहरियों में खौफ हिरास फैलाने का सबब बन रहे हैं। जरगा मशरान ने कहा कि तीरा मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन ने तमाम वादों और मुआहिदों को तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम करके नाफिज किया जाए। मुतासरीन की गाड़ियों के वाजिबुल अदा बकाया जात फौरी तौर पर अदा किए जाएं। जरगा मशरान ने वाज़ेह किया कि अगर अदायगी ना की गई तो इन गाड़ियों को जुलूस की शक्ल में पेशावर ले जाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। मुतासरीन ने तीरा की रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अकरबा परवरी, नाअहली और करप्शन की तहकीकात की जाएं। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जरगा मशरान ने कहा कि तीरा में घर या जायदाद रखने वाले तमाम रिहायशियों को IDP स्टेटस देकर मुकम्मल रजिस्ट्रेशन की जाए। सबको इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए। अपर बाड़ा और बाड़ा प्लेन एरियाज में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है, हंगामी बुनियादों पर कंट्रोल किया जाए। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। सियासी इत्तेहाद बाड़ा ने कहा कि मुतासरीन तीरा के साथ खड़े रहेंगे, उनके हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को फितना और ख़वारिज से मुकम्मल पाक किया जाना चाहिए। मुतासरीन तीरा के नाम पर निकाले जाने वाले फंड्स का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए। बाड़ा जिरगे के हवाले से PTV से गुफ्तगू करते हुए इख्तियार वली खान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी सूबे का अमन तरजीह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबे के अमन से कोई लेना देना नहीं है। इख्तियार वली खान ने कहा कि जरगा मशरान का मौक़िफ़ जायज़ है, वो रियासत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि रियासत, सियासी जमातें एक तरफ और PTI दूसरी तरफ खड़ी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फितनल हिंदुस्तान के खारिजी दहशतगर्दों के बाड़ा हमले को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशंस में 133 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मफरूर दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं। दहशतगर्दों को की मज़ीद हलाकतों और नुकसानात की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तमाम दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। मादर वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 15 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने गवादर में खुशदार से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच मजदूर ख़ानदान के 18 अफराद को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया। शुहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस घिनौने वाक़े में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करके मजलूमों के खून का बदला ले लिया है। दहशतगर्दी के इस घिनौने वाक़े के खिलाफ गवादर के गयूर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है।
غریب مزدوروں پر یہ حملہ واضح کرتا ہے کہ فتنہ الہندوستان بھارتی ماں پر بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف سرگرم ہے۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کی فتنہ الہندوستان کی مکمل سپورٹ ان کے گڑھ جوڑ کو مزید واضح کرتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے متعدد مقامات پر کی گئی دراندازی کی کوششیں ناکام بنانے پر افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے۔ صدر مملکت نے ان کارروائیوں کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں اور بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کی درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ریاست بیرونی سرپرستی میں سرگرم دشمن عناصر اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف پوری قوت اور یکجہتی کے ساتھ کارروائی جاری رکھے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ، نوشکی، دالبندین، پسنی اور گوادر میں 12 مقامات پر فتنہ الہندوستان کے منظم حملے ناکام بنانے اور دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی ہے۔ وزیراعظم نے آپریشن کے دوران وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والے 10 فرض شناس سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے افریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حملوں اور سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان بھی شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الہندوستان کے خلاف بروقت اور مؤثر کارروائی کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردی کے حملوں میں شہید ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ دہشت گردی کے تازہ واقعات میں شہید ہونے والے بلوچستان پولیس کے بہادر سپوتوں کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان، صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی سمیت اعلیٰ پولیس حکام نے جنازے میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان اور آئی جی پولیس نے شہداء کے ورثاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد عناصر ریاست کی طاقت اور عوام کے عزم کے سامنے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی قربانیوں سے ملک میں امن و امان کے قیام کا عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مختلف مقامات پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حملے ناکام بنا دیے گئے۔ مادر وطن کا بہادری سے دفاع کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ میں فیڈرل انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو ہی اس واقعے کا انہوں نے سنا، اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے وہ فوراً کوئٹہ پہنچے ہیں۔ ہم نے یہاں پر ایک بہت ہائی لیول کی سیکیورٹی میٹنگ جو ہے وہ چیئر کی ہے، پھر سی ایم ایچ گئے ہیں، وہاں پر زخمیوں کی عیادت کی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ گوادر میں لیبر کالونی میں گھس کے بلوچ فیملی خوزدار کی، ان کی خواتین اور بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا اس کی مذمت کرتا ہوں۔ سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے اور ہماری ایف سی نے اور ہماری آرمی نے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ ان دہشت گرد ٹولے کا ان کا مورائل نیچے گر رہا تھا، یہ صرف اپنا مورائل اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک اتنی بڑی کارروائی کا سائز بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جو لیتھیلٹی تھی وہ بہت کم تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے جو ریبٹل دیا ہے، جو رسپانس دیا ہے، دیٹ از سپرب۔ اور میں تمام ان کو غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کے 10 اٹیکس بھی ہمارے ریزولو کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے دہشت گردوں نے پلان کر کے یہ اٹیک کیے ہیں سارے کے سارے، اور جس طریقے سے پولیس، ہماری ایف سیز اور ہماری آرمی نے ان کا مقابلہ کیا ہے، یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جوانوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اور جو دہشت گرد آیا ہے وہ بچ کے نہیں گیا ہے۔ میں سب سے زیادہ اس میں جو سب سے بہادر شخص ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، جس طریقے سے یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ کر رہے ہیں، اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ٹائم ضروری ہے، جو دنیا کو پتہ چلنی ضروری ہے، کہ یہ دہشت گرد نارمل دہشت گرد نہیں ہے۔
انڈیا از بیہائنڈ دوز اٹیکس. ہم ایک ایک چیز کے پیچھے جائیں گے. جس طرح سی ایم صاحب نے کہا, کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے اس اٹیک میں حصہ لیا ہے, اور جو ان کے پیچھے ماسٹرز ہیں اور جہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں, اینڈ وی ول ایکسپوز دیم ان دا ورلڈ. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے رات گئے کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں سے ملاقات کی, ان کی حوصلہ افزائی کی. وزیر اعلیٰ نے مختلف پولیس چوکیوں کا بھی دورہ کیا اور اہلکاروں کے ساتھ وقت گزارا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ ہر قسم کی دہشت گردی اور بدامنی سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کے عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیے جائیں گے. فتنہ ہندوستان کی دہشت گرد کارروائیوں کا نشانہ معصوم بلوچ عوام. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے لیبر کالونی گوادر کے نہتے شہریوں کو اپنی سفاکیت کا نشانہ بنایا. جی ڈی اے ہسپتال گوادر میں زیر علاج زخمی بلوچ شہریوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے نہتے اور بے گناہ بلوچ عوام کو نشانہ بنایا ہے. ہمارا بیوی تھا, وہ باہر تھا, ایسے دروازے پہ گولی مارا نا, وہ گولی اندر آیا, ہم ادھر سوچی کہ یہ دست پہ بھی لگ گیا اور پیٹ پہ بھی لگ گیا. ہمارا بیوی نے قرآن شریف اٹھایا, کہہ رہے تھے بھائی ہم مسلمان ہیں, بخال نہیں ہے تم ایسے مار رہے. کیوں, کس وجہ سے؟ ہمارا ایک بندہ تو فوت ہو گیا, ہمارا بہن کو بھی لگ گیا, اور ہمارا دوسرا رشتہ دار بھی ادھر اس کو بھی لگ گیا. ہمارا بہن کا بیٹا, ہمارا ایک چاچا تھا, بڈھا تھا, وہ بہت سیریز ہے, اس کا لڑکا بھی سیریز ہے. جو بم پھینکا پتہ نہیں کیا کر گیا. مار کو غریب مقدس کا نام سیڑس پہ دست کو غریب موڑے اکساتے نے نکم ملٹی کنا دی تک بھائی ایسا کرے دیتی نے بے چکار کرے تینے پدام پارت پہ وسی لف قرآن نے پھر گڑا ہنانو دکھا دیسا قرآن نے پھر مسن کا خوان نے قرآن نے تا پھر قرآن او باجی دا قرآن نہ روئی نو نہ کون کرا مسڑو نہ سالو نہ کھلی نار کرے ایلم کے بنار دا چنا نہ غریب نہ ایرا ایلم نہ اخیرا پائے اما بس شہید مسو ہم لوگ ملا موسا موڑ میں پہنچے, پہنچنے کے ساتھ وہاں پہ فائرنگ کا آواز سنا, ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے. جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے کونے پہ, ادھر پہلے گرنیڈ آیا, ہم لوگ وہاں سے بچ گیا تھا. بچ کے ہم لوگ دکان کے اندر گھسے, وہاں پہ پتہ نہیں فائرنگ گولی مارا یا گرنیڈ مارا, یہ نہیں پتہ چلا ہم لوگوں کو. اور میرے والد صاحب کا سر پہ لگا, اور یہ میرا کزن ہے, ان کو 5-6 جگہوں میں بھی لگا. موسا موڑ کا دکان پہ ادھر کھڑا ہوا تھا, میرے کو اچانک میں ایسا لگا ہم پیچھے گر گئے. بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی لہر پر عالمی برادری کی جانب سے بھی سخت مذمت کی گئی ہے. سعودی عرب اور قطر نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. برطانیہ نے بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور متاثرین کے خاندانوں سے تعزیت کی. ترکی نے دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی. ترک حکومت نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں برادر ملک پاکستان کی مسلسل حمایت پر زور دیا ہے. ناظرین، صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری طویل علالت کے بعد 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر آزاد کشمیر کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے مرحوم کی جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی نماز جنازہ آج سپہر 3 بجے ان کے آبائی علاقے چیچیاں میرپور میں ادا کی جائے گی. مزید تفصیل بتائیں گے عدیل احمد خان. بیرسٹر سلطان محمود چودھری 1955 میں میرپور کے علاقے چیچیاں میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم میرپور سے حاصل کی. گارڈن کالج راولپنڈی سے گریجویشن جبکہ برطانیہ سے بار اطلاع کی ڈگری حاصل کی. آپ کا تعلق آزاد کشمیر کے سیاسی گھرانے سے تھا. 1983 سے عملی سیاست میں حصہ لیا اور 9 مرتبہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. 1996 سے 2001 تک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے اور اپوزیشن لیڈر کے علاوہ اہم وزارتوں پر بھی فائز رہے. 2021 میں آزاد کشمیر کے صدر منتخب ہوئے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا مقام رکھتے تھے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے خطے کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا. آپ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار تھے اور گزشتہ کئی مہینوں سے اسلام آباد کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی نماز جنازہ کل سپہر 3 بجے میرپور میں ان کے آبائی علاقے چیچیاں میں ادا کی جائے گی. صدر
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर समेत तमाम अहम सियासी शख्सियात ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की वफात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए आलमी हफ्ते का आगाज़ हो गया है। ख़ुसूसी रिपोर्ट देखते हैं शुमाल शबीर की। दुनिया में बसने वाले हर इंसान का जब खालिक रब्बे जुल जलाल है तो इंसानों के मुख्तलिफ मज़ाहिब की मंजिल भी इस खालिक कायनात की खुशनुदी का हुसूल है। रास्ते ख्वाह जुदा जुदा सही मगर मंजिल एक ही है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दिन हमें याद दिलाता है कि इंसानियत हर मज़हब से बड़ी मुश्तरका हकीकत है। ये दिन हमें सिखाता है कि एहतराम, मोहब्बत और मुकालमा ही पायदार अमन की बुनियाद है। दुनिया के तमाम मज़ाहब इंसान की इज़्ज़त और भलाई का दर्स देते हैं। आलमी सतह पर बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का हफ्ता मनाने का मकसद दीगर मज़ाहिब के मजहबी नजरियात का एहतराम करना और मजहब से बालातर होकर तमाम इंसानों में हम आहंगी पैदा करना है। आए हम सब मिलकर माशरे को तशद्दुद से पाक माशरा बनाएं। इंसानियत का जो एहतराम है, एहतराम इंसानियत का जो दर्स हमें इस्लाम देता है उसको लेकर आगे बढ़ें और तमाम मज़ाहिब का एहतराम हम सब पर लाजिम है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और खैर सगाली के पैगाम को दुनिया भर की मसाजिद, गिरजाघरों, मंदिरों और दीगर इबादत गाहों तक फैलाना वक्त की अहम जरूरत है ताकि इबादत गाहें अमन आशती और मोहब्बत और एहतराम के फरोग का मरकज बने। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ और आलमी अमन तफ़हीम में तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। आलमी हफ्ता बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जो मजहबी, सकाफ़ती, लिसानी और नस्ली तनव्वुर से मालामाल है। हमारा आइन तमाम शहरियों को मजहब या अक़ीदे से क़तई नज़र मजहबी आज़ादी और मसावी हुकूक़ की ज़मानत देता है। आलमी हफ्ता बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर पाकिस्तान के अवाम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि ये मौका हमें उन मुश्तरका अक़दार की याद दहानी कराता है जिनमें अमन, हमदर्दी, बाहमी एहतराम और बक़ाए बाहमी शामिल हैं। सदर ममलकत ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समाजी यकजहती, पायदार अमन और मुश्तरका तरक्की के लिए भी बुनियादी हैसियत रखती है। इस्लाम दीगर मज़ाहिब की तरह अदल, पुरअमन, ताउन और इंसानी वक़ार के एहतराम का दर्स देता है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि देखेंगे कि ईरान पर क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तनसीबात पर हमला करना पड़ा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि माज़ी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटाया गया, अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मनसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त हो रही है। एक बयान में अली लारेजानी ने कहा कि जंगी फ़ज़ा के बरखिलाफ अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम जारी है और मामलात को गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिशें जारी हैं। ईरान की पासदाराना इनकलाब आज से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशक़ें शुरू कर रही है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब की बहरी फोर्सेस की मशक़ें 2 रोज़ तक जारी रहेंगी। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका के साथ कशीदगी में इजाफा हो रहा है और ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के खदशात मौजूद हैं। ईरान, रूस और चीन ने शुमाली बहर हिंद में मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान कर दिया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान, रूस और चीन रवा माह मुश्तरका बहरी मशक़ें करेंगे। इन मशकों को मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया, जबकि इन मशकों में ईरान की बहरिया, पासदाराना इनकलाब के गार्ड्स, चीन और रूस की बहरी अफवाज हिस्सा लेंगी। इन मशकों का मकसद किसी भी मुमकिना हमले या खतरे से निपटने की पेश की तैयारी और तीनों ममालिक के दरमियान ताउन मजबूत बनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मशकों का बाकायदा आगाज़ 2019 में ईरान की बहरिया ने किया था और ये मशक़ें अब तक 7 मरतबा मुनक़्क़िद की जा चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि ये मशक़ें ऐसे वक्त में की जा रही हैं जब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था, जबकि अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में बहरी बेड़ा तैनात कर दिया है।
ईरान के मसरूफ तरीन और मारूफ तिजारती हब बंदरगाह बंदर अब्बास में यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस के साहिली शहर बंदर अब्बास में इलाके में वाक़े के एक 8 मंजिला रिहायशी इमारत में धमाका हुआ। धमाके की इमारत के 2 फ्लोर्स में हुए, जिसमें अब तक एक शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि दर्जनों गाड़ियां और दुकानें भी तबाह हो गईं। ईरानी हुकाम ने बताया कि ताहाल धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस हवाले से तहकीकात जारी है और हर पहलू से जायजा ले रहे हैं। इसराइल ने पैदल आमदोरफ्त के लिए आज से रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान किया है। रफा क्रॉसिंग से गजा में आने जाने की इजाज़त मिस्र की हम आहंगी से होगी। इसराइल का कहना है कि रफा बॉर्डर आने वाले अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले हासिल करना ज़रूरी होगा। गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली बमबारी में 6 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी और खान यूनिस में फ़ज़ाई हमले किए। मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने आम शहरियों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल के बेबुनियाद और खोखले दावे अमन मुआहदे के सालिसों, इसराइल के जामिनों और पीस काउंसिल में शामिल तमाम फ़रीक़ैन की तौहीन है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि इसराइली तैयारों ने हमास और इस्लामी जिहाद के सरकर्दा रहनुमाओं को निशाना बनाया है। असलहे के ज़ख़ीरे को भी निशाना बनाया गया। बकिया खबरें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हर वक्त बर वक्त रंग, हुनर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, जो हर दिल को जोड़कर बन जाए एंजॉयमेंट। ये है जश्न पाकिस्तान, जहां दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई पहचान, पाकिस्तान की बुलंद उड़ान। इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026 31 जनवरी तक 1 फरवरी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। सिंध की धमाल, पंजाब का भंगड़ा, खैबर पख्तूनख्वा का वलवला, बलोचिस्तान की शान, कश्मीर की धुनें, गिलगित बल्तिस्तान के रंग और इस्लामाबाद जो बनेगा दुनिया का नया टूरिज्म हब, जहां रिवायात, जिद्दत और मेहमान नवाजी इकट्ठे सांस लेंगे। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून शो, फैमिली अरीना, किड्स एक्टिविटीज, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले। और 31 जनवरी को F9 पार्क में टेंट पैगिंग के मुकाबले। मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के रंगों से मुज़य्यन है पाकिस्तान। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वज़ारत बैनुस्सूबाई राबिता, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की ज़ाती काविशों से एबटाबाद के सियाहती मकाम ठंडियानी, ओखड़ियाला और अंदर सेरी को मिलाने वाली सड़क से 14 रोज़ बाद बर्फ़ हटा दी गई। मुसलसल बर्फबारी के बायस सड़क बंद होने से इलाके में ग़ज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ही NW के STO जाहिद अमीन को फौरी कार्रवाई की हिदायत की, जिस पर रात गए सड़क से बर्फ़ हटाई गई। अहलियान इलाका ने सड़क की बहाली पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का शुक्रिया अदा करते हुए इस इक़दाम को अवामी खिदमत करार दिया। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और अब्र आलूद रहने का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मौसम सर्द रहेगा, आसमान पर बादल छाए रहेंगे, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बकिया खबरों में आपको आगाह करेंगे। अमेरिका में बदनामे ज़माना जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी फाइल्स में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ गया है।
اور اب کچھ قومی خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ SIFC کی مؤثر حکمت عملی کے باعث پاکستان عالمی سرمایہ کاری کے توجہ کا نمایاں مرکز بن گیا ہے. پاکستان کے معاشی استحکام اور اصلاحاتی اقدامات نے عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو نئی تقویت دی ہے. مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاکستان نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قیادت اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے زیر اہتمام ورچوئل انویسٹر روڈ شو کا انعقاد کیا. یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر عالمی سرمایہ کار اس روڈ شو میں شریک ہوئے. ایونٹ میں 225 عالمی سرمایہ کاروں نے شرکت کی جن کے اثاثہ جات کی مجموعی مالیت $3 ٹریلین سے زائد ہے. شرکاء میں دنیا کے بڑے سرمایہ کار اور ادارے شمالی امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں سے شامل ہوئے. روڈ شو میں پاکستان کی میکرو اکنامکس، معیشت میں استحکام، اصلاحات اور سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیے گئے. بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی وسیع شرکت پاکستان کی مضبوط اور مستحکم معیشت پر عالمی اعتماد کی عکاس ہے. SIFC نے سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو پلیٹ فارم فراہم کر کے سرمایہ کاروں کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات مہیا کر دی ہیں. پاکستان میں عالمی اداروں کی آمد اور مضبوط مالیاتی ذخائر سے ملک کی عالمی معاشی ساکھ مزید مضبوط ہو رہی ہے. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر کے طلباء نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا پیغام دیا ہے. آزاد کشمیر کے نوجوان طلباء نے مقبوضہ جموں کشمیر کی جدوجہد آزادی کو مشترکہ ذمہ داری قرار دیا ہے. طلباء نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی. اس موقع پر طلباء کا کہنا تھا کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی مظلوم بہن بھائیوں سے دل و جان سے وابستہ ہیں. طویل داستان بن چکا ہے، لیکن کرفیو، محاصرے اور بندوقیں کشمیری عوام کے حوصلے کبھی پست نہ کر سکیں. شہداء کی قربانیاں تحریک آزادی کشمیر کا روشن اور ناقابل فراموش باب ہیں. دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حق خود ارادیت کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے اور بھارتی مظالم پر عالمی ضمیر کی خاموشی ایک گہرا سوالیہ نشان ہے. لیکن ہمیں یہ پختہ یقین ہے کہ جلد مقبوضہ جموں کشمیر آزادی کی فضا میں سانس ہوگا. وہ دن ضرور آئے گا جب پورا کشمیر پاکستان کے ساتھ جڑ جائے گا. وہی خواب جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا، کشمیر بنے گا پاکستان. حالیہ امریکہ بھارت تجارتی کشیدگی میں اڈانی کیس نااہل مودی ایک اور سفارتی چیلنج بن گیا ہے. مودی کی نااہل سرکار کی زیر سرپرستی کرپٹ اڈانی کو تحفظ ملنے پر عالمی اداروں نے بھارتی دھوکہ دہی کا پردہ چاک کر دیا ہے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکہ میں تحقیقات کے دوران اڈانی پر $250 ملین کی رشوت خوری کے انکشاف نے بھارت کی ساکھ ہلا دی تھی. عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے اڈانی گروپ امریکہ میں رشوت خوری اور فراڈ کے مقدمات کی زد میں ہے. طویل عرصے تک مودی نے اڈانی اور اس کے بھتیجے کو امریکی سمن سے بچانے کی بے حد کوشش کی. مودی کی کوششوں کے باوجود امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. اس سے قبل ہنڈنبرگ رپورٹ میں بھی اڈانی گروپ پر ہیرا پھیری، فراڈ اور بد انتظامی کے انکشافات کیے جا چکے ہیں. عالمی جریدے نے اڈانی پر امریکی مقدمات میں بھاری جرمانوں اور قید کی سزاؤں کا اندیہ دے دیا ہے. دوسری جانب بھارتی صحافی نے اڈانی گروپ کا امریکی کیس میں غلطی تسلیم کرنے کا انکشاف کر دیا. امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے براہ راست سمن کے بعد اڈانی گروپ نے سیٹلمنٹ کی کوششیں تیز کر دی ہیں. سیٹلمنٹ کی کوشش دراصل اعتراف جرم کے مترادف ہوتی ہے. عالمی ماہرین کے مطابق امریکہ میں جاری اڈانی کیس نے مودی اور کرپٹ اشرافیہ کے گٹھ جوڑ پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں. ان کی کنفیشنز جو ہیں، ان کے بیانات جو ہیں، اعترافی بیانات جو ہیں، ان سے بھی ثابت ہوتی ہیں، اور جو ہماری انٹیلیجنس فائنڈنگز جو ہیں کہ یہ ساری لنکیجز جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں. DLA جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں بینڈ ہے، اور یہ صرف پاکستان نے بین نہیں کی ہوئی، یہ بھی انٹرنیشنلی بینڈ ہے. اور یہ پچھلے سال میں، اس سے پہلے بھی اپنی ریلیونس، اپنا وجود جو ہے کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کے لیے، تاکہ ان کو فورن فنڈنگ خصوصاً ہندوستان کی طرف سے جاری اور ساری رہ سکے. یہ اس قسم کے اٹیکس جو ہیں سویلین پاپولیشن اور سویلینز کو اغوا کرنا،
सरकारी मुलाजमीन को अगवा करना, इस किस्म की जो टैक्स जो हैं उसको स्टेज करते रहते हैं। इन्होंने साथ साथ एक अपना इंसानी हकूक का भी ये चेहरे रखे हुए हैं, वो भी नकाब पहना हुआ है, वो भी मुंह के ऊपर जो है ना एक किस्म का लिबादा ओढ़ा हुआ है। वो BYC और दूसरे जो है मिसिंग पर्सन्स का एक नैरेटिव बनाया हुआ है। हकीकत ये है, मैं खुद आज से 8-10 साल पहले इस मसले के साथ जो है मिसिंग पर्सन के साथ, जब मैं नया डिफेंस मिनिस्टर बना था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बयान भी दिया था कि ज़्यादातर लोग जो हैं मिसिंग पर्सन जो हैं वो BLA या दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान हैं। वो इनके दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट हैं जो हमारे वतन अजीज़ के मुख्तलिफ जो है सेंसिटिव मकामात पे, सिविलियन मकामात पे, दफातर के ऊपर हमला करते हैं। और जब ये टारगेट होते हैं, ये दहशतगर्द जो है मारे जाते हैं, तो वो साबित होता है कि ये मिसिंग पर्सन की लिस्टों में भी इनके नाम शामिल है। तो ये एक टोटल फ्रॉड है, सिर्फ एक नैरेटिव बनाया गया हुआ है। किसी न किसी तरह लिंक जो है इन तमाम मिसिंग पर्सन का, या तो वो जिंदा हैं, इनमें से बहुत से दुबई और मस्कत में रहते हैं, और उनके रिश्तेदार जो है मिसिंग पर्सन का एक अलाउंस जो है वो भी रिसीव करते हैं। और एक नैरेटिव जो है एक आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव जो है, ताकि दुनिया की अटेंशन जो है अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर सकें। अदरवाइज इस नैरेटिव के कोई सिर पैर नहीं है। और अब ये छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ख्वातीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, करके जो हुआ है मुख्तलिफ 12 शहरों में जो वाक़यात हुए हैं, उसमें 2 जगह जो है ख्वातीन जो है इस्तेमाल की गई हैं। और बच्चियों को इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है, उनके ज़हन को पोल्यूट किया जा रहा है। में बच्ची जो है जो नाकाम खुदकश बॉम्बर थी, उसने ये एडमिट किया है कि उसको बाकायदा इंडोक्ट्रिनेट किया गया और इमोशनली मैनिपुलेट किया गया। कल पसनी में भी एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो एक नौजवान बच्ची थी। अब इन्होंने गरीब लोगों को, जिनमें लेबरर हैं, ख्वातीन हैं और ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जिन पे जो है जीना उनका दूभर हुआ है बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, उनको टारगेट किया जा रहा है, मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है। कल जो है टारगेट जो है न्यूट्रलाइज सारे के सारे हो चुके हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान जो हैं उनकी शहादत हुई है। और जो दहशतगर्द मारे गए हैं पिछले 2 दिन में, उनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है और हो सकता है ये तादाद जो है बढ़ जाए। पाकिस्तान का मतमनज़र है, हमारा एक कौमी एक एजेंडा है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो है अमन कायम हो और कोई बैरूनी ताकत, खुसूसन हिंदुस्तान जो है, उसमें अफगानिस्तान भी आप शामिल कर लें, वो हमारे मुल्क में अमन के को धर्म भरम करने के लिए इस किस्म के जो फ्रेंचाइज जो हैं दहशतगर्दी के, उनको इस्तेमाल ना करें, जिसमें BLA भी है और TTP भी है। हम एक
तवील जंग चंद सालों से इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी, हमारे वतन की फतह होगी और हम इन दहशत गर्दों को मुकम्मल तौर पे जो है इनका खात्मा करेंगे। उसमें किसी किस्म की कोई रियायत की कोई तवक्को ना रखे और हम भी तवक्को रखते हैं, बसीयत पाकिस्तानी बसीयत कौम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में किसी जगह भी किसी की ज़बान से इनके लिए कोई रियायती कलमात जो हैं उन्हें नहीं निकलने चाहिए। ये पैगाम जाना चाहिए कि पूरी कौम, चाहे वो सियासी लोग हैं या आम आवाम है, वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है कौम जो है वो मुकम्मल यकजहती और इत्तेहाद का जो है को डेमोन्स्ट्रेट करे। कल जो मुख्तलिफ जगह पे वाक़यात हुए हैं, कोयटा सरियाब रोड पे ऑलरेडी ये मीडिया ने कवर किया हुआ है। इसके बाद नोशकी में एफसी हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। दालबदीन में एफसी हेडक्वार्टर पे भी सुसाइड अटैक जो है वो अटेम्प्ट किया गया। इसी तरह और बहुत से टारगेट जो हैं, तकरीबन 12 टारगेट जो हैं उनको टारगेट किया गया। इस वक्त अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान के तूल और अर्ज़ में अमन कायम हो चुका है और इनका पूरी तरह जो अटैक था, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, उसको मुकम्मल तौर पे रिपल्स किया गया है और बेशुमार लाशें जो है छोड़ के ये लोग इन्होंने रिट्रीट किया है और हमारी अफवाज इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक मॉपिंग अप ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बलूचिस्तान, ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान का जो रकबा है वो बाकी तमाम सूबों से कहीं बड़ा रकबा है और आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से इन लोगों को ऑपरेट करने की सहूलत वहाँ पे मुयस्सर है। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम ये भी जो है इनका एडवांटेज जो है इसको ख़त्म करेंगे और ये आउटकम जो है, ये हरूफ 2 जो है इनका, ये जिसको जो नाम दिया है BLA वालों ने अपने इस ऑफेंसिव को, वो भी अपनी वर्थलेस प्लानिंग की वजह से बे टेररिस्टों की लाशें छोड़ के इनको वहाँ से भागना पड़ा और अफ़गानिस्तान में जो इनके प्लानर बैठे हुए हैं, जो हैंडलर बैठे हुए हैं, जो इनकी लीडरशिप बैठी हुई है, वो जवान बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करके जो है अपने नापाक अज़ाइम के ऊपर जो है कुर्बान कर रही है। मैं एक और मसले की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कल एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उनको बरसरे आम लाया गया है और हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह उसको वज़ीर आज़म मोदी का एक और चेहरा जो सामने आया है, वो इजराइल को की खुशनुदी के लिए, अमेरिका के कुर्बत के असूल के लिए मुजरे भी कराते हैं और मुजरों में खुद भी डांस करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ पे कांग्रेस पार्टी कह रही है हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है? एक तो हमसे हमारे हाथों रुसवा हुए, फेंटी लगी उनको। आज भी मेरा ख्याल है को तकरीबन 66-67 दफ़ा जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि 7 जहाज जो है वो
हिंदुस्तान के पाकिस्तान ने गिराए। इन हालात में एप्स्टीन जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जिनसी स्कैंडल में जो इन्वॉल्व थे, उनकी जो ऑफिशियली वहाँ पे रिलीज़ हुई हैं, टेप्स रिलीज़ हुई हैं, वीडियोस रिलीज़ हुई हैं, उनमें मोदी का किरदार भी जो है ना वो सामने आया है। मैं समझता हूँ किसी भी दुनिया के किसी भी रियासत की लीडरशिप जो है इतने घटिया हथकंडों पे नहीं उतर सकती जिस पे मोदी उतरा हुआ है। इजराइल और अमेरिका को जो है उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कि मुजरे करवाता है, खुद भी डांस करता है, और इस किस्म के, मैं इधर ही ब्रेक लगाऊंगा, इससे ज़्यादा जो है लंबी बात नहीं करूंगा। अगर आप दोस्तों ने कोई सवालात करने हैं तो मैं हाजिर हूँ। ये जो हालिया जो दहशतगर्दी की लहर आई है, इसमें हमारे जवानों को शहादत हुई और सिविलियन के भी 18 लोग थे, इसमें ये जो सूरतकार है जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में सूरतकार है, उनके भी कोई मंजर आम पे आए हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? देखिए, ये सहूलतकार जैसे जैसे हमें पता लगता है तो हम सहूलतकारों को जो है न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, और इंशाल्लाह ताला इस ये जो कल वाला अटैक था इसमें जो जिन सहूलतकारों का पता चला है या पता लगेगा, उन सब को जो है वो वहीं पहुंचाएंगे जहां पे हमने दहशतगर्दों को पहुंचाया है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि क्योंकि बलूचिस्तान का जो रकबा है दूसरे सूबों से ज़्यादा, इस वजह से उनको एडवांटेज है इस वाले से, तो नेक्स्ट क्या हुकूमत जो है अमल बनाने जा रही है इस वाले, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं कोई मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट नहीं हूँ। हमारी अफवाज जो हैं इस सिलसिले में स्ट्रेटजी बनाई भी हुई है, पहले भी उस पर काम किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बलूचिस्तान में पिछले कई माह से, बल्कि साल 1.5 साल से एक रिलेटिव काम था, जो दहशतगर्दी में कमी आई हुई थी। वेयर जो है केपी में दहशतगर्दी जो थी वो उसका पारा जो है ऊपर गया हुआ था। तो ये इंशाल्लाह ताला ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है ना इनके हाइडआउट्स को हमें टारगेट करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे बॉर्डर के अंदर हैं और अगर बॉर्डर के बाहर भी हैं। तो जिस मुल्क में भी होंगे, अगर अफ़गानिस्तान इनकी पुष्टपनाही कर रहा है तो हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो है कोई भी कदम उठाना पड़े तो हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारा हल्फ भी है, उसमें कोई दरेग नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान को आज को, ये जो 2 दिन में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से कोई मुज़म्मती बयान क्यों नहीं है? मेरा ख्याल है आज सुबह टीवी पे चला है, मैं केपी के वज़ीर आला का, उन्होंने मुज़म्मत की है दहशतगर्दी की जो है, ये आज मैंने टीवी पे देखा है। तो मेरा ख्याल था कि उन्होंने भी बाकी कौम के साथ जो है अपनी आवाज़ शामिल की है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि उनका सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ टारगेट हुआ है। जो सीरा के वैली के जो हालात हैं वो भी जो है इस चीज़ की डिमांड करते हैं, या इस चीज़ की जो है शिद्दत से ज़रूरत महसूस करते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, उनकी आपस में जितने मर्ज़ी इख्तलाफात हों, इस सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आप देखें जितने भी शहादतें हो रही हैं इस जंग के अंदर, उसमें तमाम सूबों के बेटे और बेटियां शहीद हो रही हैं। हमारी जो अफवाज हैं उनमें जो बच्चे हैं, उसमें कोई उन्होंने जो इस ज़मीन के साथ अपनी वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, उसमें कोई सियासी जो है कंसिडरेशन कोई नहीं है, उसमें कोई मफादात जो है पोशीदा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो अहद किया है वो है इस मिट्टी की हिफाजत करने के लिए, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, पलती है, कश्मीरी है, गिलगिती है, वो अपनी जानें जो हैं अपने अहद के लिए और इस मिट्टी के साथ जो उनका एक रिश्ता है उसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो जो लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जिनका ताल्लुक़ है या जिनके सियासी मफादात हैं,
मैं किसी एक पार्टी की तरफ नहीं इशारा कर रहा, मैं सब के लिए कह रहा हूँ कि वो अपने सियासी मफादात से बालातर होके शख्सियतों के महवर से निकल के इस मिट्टी और इस वतन अजीज़ को जो है अव्वल और आखिर, मैं फिर कहूँगा अव्वल और आखिर जो है अपनी ज़िंदगी का महवर बनाए। पर सब ये जो सहूलत कार जैसे जो शामिल हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सियासी अनासर जो हैं अपनी खामोशी की वजह से और मजम्मत ना करने की वजह से एक किस्म का सहूलतकार बन जाते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के मरबूत हमलों को पसपा कर दिया गया। गुज़श्ता 2 रोज़ में 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। दहशतगर्द ख़वातीन और बच्चों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। दहशतगर्द मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।